Hello everybody, welcome to RT Academy. My name is Anjali Gar and we'll start with the class 9th mathematics. So I'm your mathematics mentor and today we will start with the first chapter of class 9, that is the number system. So we all know that whatever we study in the mathematics, we need everywhere need numbers. So first we will study about the number systems, what kind of numbers we'll need in our mathematics. Okay, so we will start with the natural numbers first. So what are the natural numbers? So जब भी एक बच्चा होता है तो सबसे पहले वो क्या सीखता है? नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स के बारे में सीखता है. वो जब छोटा होता है तब उसे नहीं पता होता ना कि और कितने तरह के नंबर है, तो वो स्टार्ट करता है 1 से 2 से 3 से. तो स्टार्टिंग में वो इन बेसिक नंबर्स को सीखता है. सो दे आर द नेचुरल नंबर. सो इसके वर्ड से ही पता चल रहा है नेचुरल नंबर मीन्स वह नंबर्स जो कि नेचुरली बच्चा निकालता है अपने मुंह से. तो दीज आर द नेचुरल नंबर्स विच विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 and it will go up to infinity. So that means natural numbers are infinite because we have so many natural numbers. So it will start with 1 and it will then we have 2 3 4 and it will go up to infinity. So we have so many natural numbers. Okay, so now if we draw a number line, suppose this is the origin, this is 0 1 2 3 4 and this is -1 -2 -3. So नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट करें व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स, सो 1 से लेके जितने भी आगे नंबर्स आएंगे ये सारे दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. Okay, so now after natural numbers, if we are add 0 in the set of natural numbers, now with 0 with 1 2 3 4, if we will add 0 in the set, we will get set of whole numbers. So this is the set of whole numbers. So the whole numbers are 0 1 2 3 4 5 and it will go up to infinity. So in the set of natural numbers we are just adding 0 also. So this is the set of whole numbers. So after that, are we done with the numbers? Of course not. So for every natural number, that means for 1 2 3 4 5, so for every natural numbers we are also adding the negative of all these numbers. So that means we are also taking -1 -2 and it will also go up to minus infinity, and also we are adding the set of whole numbers. So these all numbers together makes the set of integers. So it will be positive, negative together. It will make the set of whole numbers. Sorry, integers. So this is the set of integers. So now, अब सपोज करो एग्जामिनर ने ऐसे पूछा कि भाई इंटीजर्स को या नेचुरल नंबर्स को किसी और तरीके से हम प्रोनाउंस भी कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम देखें कि जो नेचुरल नंबर्स है सारे पॉजिटिव नंबर्स है ना, so instead of saying natural numbers, can we also say that the set of positive integers? So that means we can also say that natural numbers are positive integers. Okay, so ये एक तरह से different way है natural numbers को बोलने का. We can say natural number as well as positive integers. Similarly, -1 -2 -3 -4, these all are -3 -2. All these numbers are negative integers. ठीक है, अब बात आती है जीरो की. क्या जीरो को पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे या नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे? So we have to take care here that 0 is neither a positive number nor a negative number. So it is neither positive nor negative. So we will not say that it is a positive integer or a negative integer. ओके, सो अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है? जैसे वी ऑल नो दैट इन द 2021 इन दिस सेशन, सो इन दिस सेशन वी आर जस्ट चेंजिंग द पैटर्न ऑफ द एग्जाम. तो सीबीएसई ने क्या किया है, जो अब जो टर्म 1 की जो एग्जाम्स होंगे उसमें क्या होगा कि हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे. तो टर्म 1 में जो पैटर्न रहेगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें बेसिक नॉलेज चाहिए. तो अब इसके अंदर देखो डायरेक्ट हमको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं. लेकिन इसी में अगर मान लो उसने थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ दिया क्वेश्चन, अब इसमें ऐसा पूछ सकता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होंगे क्या? ऑल नेचुरल नंबर्स विल बी होल नंबर और नॉट. सो अब इसका क्या मतलब हुआ? तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर्स भी होंगे? Of course, we can say that every natural number is whole number because natural numbers start with 1.
1, 2, 3, 4, all these numbers are whole numbers. So yeah, that is true statement. But if we say the converse, can every whole number be a natural number? Every whole number will be a natural number. Can we say that every whole number will be natural number? Of course not, because 0 is a whole number but is not it is not a natural number. Okay, so this statement is false. Similarly, अगर पूछा जाए कि every whole number is an integer or not, every whole number is an integer or not, so that means every whole number, that means 0, 1, 2, 3, 4, 5, we know that all these numbers are integer as well, so that means the statement is true. Now we are saying the converse part. Suppose I am saying now, is every integer will be a whole number or not? So now we know that we have so many integers which are not the whole number. That means -1, -2, -3, -4, all these numbers are integer but these are not whole number. So my given statement is false. Okay. Similarly अब क्या बचा, natural numbers और integers के बारे में बचा. तो अभी अगर हम लोग लेंगे natural numbers और integers, so क्या सारे natural numbers integers होंगे क्या? अच्छा देखो, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, these all are natural numbers but they are also integers, right? So this statement is true. Now we are saying the converse thing, that is every integer will be natural number? Now we know that 0, -1, -2, -3, all these numbers are integer but they are not natural number. So my given statement is false. So we have to take it very carefully, like what we are taking. Every natural number will be whole number, so we have to understand the basics of the numbers, what are the natural numbers, whole numbers, integers, then according to that we will say that my given statement will be true or not. Okay, so now after discovering all the numbers, like we studied natural numbers, whole numbers, integers, now are we done with the number? और नंबर भी बचे हैं कि हमारे पास जो हम बोल सकते हैं कि हाँ नंबर लाइंस पे होंगे? तो हमने अभी देखा कि ये अगर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, दिस इज -1, दिस इज -2. अब ये नंबर्स तो हमने देख ली, लेकिन व्हाट अबाउट द नंबर्स इन बिटवीन दीज टू नंबर्स? अब इंटीजर्स के बीच के नंबर्स के बारे में हम कैसे पता करेंगे? और भी तो नंबर्स होंगे ना यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारे पास दूसरे नंबर्स आते हैं जिन्हें बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे रैशनल नंबर. सो रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं? दीज आर द नंबर्स बेसिकली ऑफ द फॉर्म p by q इनका फॉर्म होता है सच दैट p and q शुड बी इंटीजर. ठीक है, these should be integers and q should not be equals to 0. ठीक है, तो मतलब हमको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का कुछ फ्रैक्शन चाहिए. लाइक in the numerator we have some integer, in the denominator we also have some integers, and integer divided by integer, but we have to take care one more thing here, denominator, this cannot be equals to 0. Okay, so then we will say that it is a rational number. ठीक है, तो अब देखो हमारे पास कौन कौन से, सपोज मैंने कुछ नंबर्स लिए, फॉर एग्जाम्पल I'm considering some numbers. So suppose I'm taking 2 divided by 3. So here 2 is integer, 3 is integer, so that means 2 by 3 is a rational number. Suppose I'm taking -1 divided by 2. So -1 is an integer, 2 is also an integer, so that means -1 by 2 is also a rational number. Now this time I'm taking only 4. So suppose I'm taking only 4, so that means if there is nothing in the denominator, that means 1 will always be there. So this is 4 by 1. So 4 by 1 means again we have integer divided by integer, and denominator is also not 0. So that means this is also a rational number. Okay, so अब एक number लेते हैं 0 divided by 1, or we can say simply 0. So can we say that 0 is also a rational number? अब देखो हमको वापस डेफिनेशन रिकॉल करनी है. 0 means 0 divided by 1, because if nothing is there in the denominator, that will be 1. Okay, so now we have 0 in the numerator, 1 in the denominator. So integer 0 is also integer, 1 is also integer. So integer divided by integer, and denominator is also non-zero. So it is satisfying all the properties of rational number. So that means this will also be a rational number. 0 divided by 1 will also be a rational number. Now I'm taking -7.
divided by -5. So we know that the -7 will be cancelled out. So 7 by 5. 7 is an integer, 5 is also an integer. So 7 by 5 will also be a rational number. Okay, so now this time I'm taking -1 divided by +2, or we can say -2. So again, integer divided by integer, this is also belongs to set of rational number, and we can denote it as q. Q is the notation for denote the set of rational number. Similarly, for natural numbers we will use n, for whole numbers we will use w, for integers we can use I or we can use z. This is for natural numbers, this is for natural numbers, this is for whole numbers, and this is for integers. Okay, now suppose I'm taking another rational number, suppose another fraction, suppose this is 1 divided by 0. So now is this rational number or not? This will be rational number or not? So first we have to again recall the definition of the rational number. We know that 1 is an integer, right? This is my integer. 0 is also an integer, but we also know that q should not be equals to 0. But here we are taking q is equals to 0. So that means it is not a rational number. So this element will not belongs to the set of rational number. So we can say that, yeah, so this is not a rational number. So 1 by 0 is not a rational number. Okay, so in this way we can define number is a rational number or not. Okay, so now we discussed 4 type of numbers. Okay, the first one is the set of natural numbers. Yeah, just a minute. Yes, so the first set of number is natural numbers. Then we have another set, that is the whole number. Then we have another set, that is the, sorry, thoda sa ye galat ho gaya. Then we have a set of integers, we can denote it by z. And then we have the set of rational numbers. Okay, so this is the set of rational numbers. Okay, so now जैसे हमने 3 तरह के नंबर्स पढ़े थे, जब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, तो उसमें हमने कुछ ट्रू फॉल्स देखे थे कि नेचुरल होल होगा तो ट्रू होगा कि नहीं, एवरी नेचुरल नंबर विल बी होल नंबर और नॉट. सो इस तरीके से हमने 3 टाइप के नंबर्स पढ़े, तब तक हमने वो देखा. अब हमारे पास एक चौथे टाइप का नंबर ऐड हो चुका है, सेट ऑफ रैशनल नंबर. तो अब अगर हमसे पूछा जाए क्या एवरी रैशनल नंबर विल बी अ होल नंबर और नॉट, एवरी रैशनल नंबर विल बी नेचुरल नंबर और नॉट. सो इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है. अब सबसे पहले देखते हैं हम लोग एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर और नॉट. वो तो हमको पता है, हमें रैशनल का देखना है कि एवरी नेचुरल नंबर. तो इसको हम अलग अलग तरह की ट्रू फॉल्स मान सकते हैं कि इस तरीके से कोई भी कॉन्सेप्ट वाइज कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो पहले पूछा जा रहा है कि नेचुरल नंबर विल बी सेट ऑफ रैशनल. ठीक है, अब इसको देखते हैं पहले. तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4. तो इन सभी नंबर्स को क्या हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. क्या q नॉन जीरो होगा? बिल्कुल होगा. और तीसरी चीज, सेट ऑफ इंटीजर्स. सो p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है. सो दैट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर विल बी अ रैशनल नंबर. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अभी देखते हैं क्या कन्वर्स ट्रू होगा. दैट मीन्स अगर q लेती हूँ, क्या एवरी q विल बी नेचुरल नंबर और नॉट. अच्छा देखो, अब मैंने एक q लिया, दैट इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर. अब मैंने रैशनल नंबर लिया एक 2 डिवाइडेड बाय 3. 2 बाय 3 इज अ रैशनल नंबर, बट क्या ये नेचुरल नंबर भी है? नहीं है. तो इसका मतलब हम लोग नहीं बोल सकते कि हर रैशनल नंबर भी एक नेचुरल नंबर होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, अब बात आती है कि क्या होल नंबर्स रैशनल नंबर्स होंगे. अब देखो होल नंबर्स में क्या क्या आता है? 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, ये सारे नंबर्स आते हैं. और ये सारे नंबर्स क्या कर रहे हैं? ये सेट ऑफ रैशनल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं. सो दैट मीन्स एवरी होल नंबर विल बी अ रैशनल नंबर. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अब देखो, अब हम देखते हैं कन्वर्स पार्ट. कन्वर्स पार्ट मीन्स क्या एवरी रैशनल नंबर विल बी अ होल नंबर. सो अगेन वी विल डू द सेम थिंग. -1 by 2, or we can say 2 by 4. This is my rational number. Can it be a whole number? Of course not. This is not a whole number. So this statement will be false.
ठीक है, अब बात आती है इंटीजर्स टू रैशनल। इंटीजर्स टू रैशनल, क्या एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर? इंटीजर्स इज -2, -1, 0, 1, 2, दीज ऑल आर दी इंटीजर्स। क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ द लास्ट पार्ट इज, क्या एवरी रैशनल नंबर विल बी अ इंटीजर? अब देखो, वी नो दैट again 3 by, suppose I'm taking 3 by 4, so 3 by 4 is a rational number, but still it is not an integer, so that means we cannot say that every rational number will be a integer, so my this statement is false. Okay, so देखो, अभी हमने, अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज समझे तो हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा ट्रू है या फॉल्स है, बट अगर हम इस सर्कल के थ्रू समझे कि ये सर्कल में देख के हम लोग बताएं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, फॉल्स है कि नहीं, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। देखो, इसका एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी हम लोग इनर टू आउटर जा रहे हैं, इनर टू आउटर मीन्स अंदर वाले सर्कल से बाहर वाले सर्कल की तरफ जा रहे हैं, देन माई स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी ट्रू। ठीक है, देखो तुम ऑब्जर्व भी कर सकते हो, जब भी हम नेचुरल टू रैशनल गए, होल नंबर टू रैशनल गए, इंटीजर्स टू रैशनल गए, या नेचुरल टू होल गए, होल टू इंटीजर गए, तो जब भी हम लोग इनर टू आउटवर्ड जा रहे हैं तो इन दिस केस माई स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी ट्रू। बट अगर हम लोग बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो माई स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी फॉल्स। ठीक है, तो ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक है इसको समझने का, कि अगर हम लोग इस सर्कल में इनवर्ड टू आउटवर्ड जा रहे हैं तो इसको हम लोग एज अ शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हैं, दैट इज if we will go from inward to outward, that will always be true. Okay, so इसको नोट डाल के हम लोग लिख सकते हैं, inward to outward will always be true and outward to inward will always be false. ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास। जितने भी अभी तक हमने 4 तरीके के नंबर्स पढ़े, उसमें किसी भी टाइप का, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना ट्रू फॉल्स का, कि हमारे पास कौन से नंबर्स बन सकते हैं, रैशनल नहीं बन सकते, कुछ भी अगर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आए तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, अब रैशनल नंबर्स के बारे में थोड़ी बहुत चीजें और जानेंगे हम लोग, कि भाई रैशनल नंबर्स के इक्विवेलेंट फॉर्म्स क्या होते हैं। अब देखो, इक्विवेलेंट फॉर्म मतलब कोई रैशनल नंबर लिख रहे हैं हम लोग, तो कोई रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट फॉर्म मतलब कि जैसे मैंने लिखा p/q, दिस इज माय सम रैशनल नंबर। ठीक है, इक्विवेलेंट फॉर्म मतलब कि इस तरीके से लिखो कि जो नया रैशनल नंबर बन रहा है ना, उसको जब हम कैंसल आउट करेंगे, उसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो वो भी हमको p/q ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो सपोज करो मेरे पास 1/2 एक रैशनल नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, मुझे क्या चाहिए, इसका इक्विवेलेंट फॉर्म चाहिए। तो इक्विवेलेंट फॉर्म मीन्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म बोले तो सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं हम। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। अगर हम लोग बोल रहे हैं ना कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है p और q के बीच में, तो हम लोग कह सकते हैं कि p एंड q, माई रैशनल नंबर इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो 1/2 को, अगर हम 1/2 को देखें, 1 कैन बी रिटन एज 1 into 1, 2 कैन बी रिटन एज 2 into 1. So 1 is the only common factor between, no common factor means it's 1 is the only common factor between p and q. Then we can say that my fraction, my rational number is in simplest form. Okay, अब देखो मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट फॉर्म निकालने हैं। मतलब अब जब मैं न्यू फॉर्म्स निकालूंगी ना, जब मैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो इट शुड बी 1/2 ओनली। ठीक, तो अब मुझे क्या करना है, मेरे को अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ एक्सेप्ट 1। ठीक है, बिकॉज देखो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, वापस 1/2 मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना है, 1/2 को ना किसी भी और इंटीजर से, इट कैन बी 2, 3, -1, -2, एनीथिंग। तो अब मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो मुझे क्या मिला, डिनोमिनेटर में 2 मिला और न्यूमरेटर में 2 एंड डिनोमिनेटर में 4। अब देखो 2/4 को अगर मैं कैंसिल आउट करूंगी ना,
टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, तो ये मुझे वापस से 1/2 मिल जाएगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि 1/2 का एक इक्विवेलेंट फॉर्म है 2/4। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट फॉर्म निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली मैनी इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ अ गिवन रैशनल नंबर। ठीक है, तो जैसे 2/4 is one of the equivalent form of 1/2. Then also we can also find that suppose we are multiplying with 3, so this will be 3 divided by 6. This is another equivalent form. Instead of that, suppose I want to multiply with -4, -4 से multiply and we are dividing it by -4 as well, so this will be -4 divided by -8. अब देखो जब इसको cancel out करेंगे ना, we will again get 1/2. So that means all these, what, 2/4, 3/6, -4 by -8, all these are the equivalent forms of the number 1/2. ठीक है, अब देखो ये जो इक्विवेलेंट फॉर्म के क्वेश्चन है ना, अब इसको बनाने के अलग अलग, अब वो सिंपल तो हमको पता ही है कि कोई रैशनल नंबर 1/2 दिया हुआ है कि रैशनल नंबर है तो इसके इक्विवेलेंट फॉर्म लिख दो। तो अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा सकता है। अगर उसने रैशनल नंबर सीधा नहीं लिखा ना, तो वो 0 डेसिमल्स में डाल सकता है। अब देखो हमें पता है कि जो 0.1 है, दैट इज ऑल्सो व्हेन वी रिमूव दिस डेसिमल, दिस विल बी 1/10. So that means in this case now we want to find the equivalent forms of the rational number 1/10. ठीक है, फिर वापस से हम लोग वही करेंगे। 1/10 के इक्विवेलेंट फॉर्म क्या हो सकते हैं, we are multiplying and divide by 2, so this will be 2 divided by 20. This is one equivalent form. We can also divide and multiply with -2. और हाँ, हमको एक और चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो वी हैव टू पुट अ ब्रैकेट ओवर देयर, बिकॉज जब हम मल्टीप्लाई के साथ नेगेटिव साइन डाल रहे हैं ना, देखो अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नेगेटिव डालें तो हमको समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो हमें क्या करना है कि ताकि प्रॉपर लगे हमको, तो हमें क्या करना है, इसको ब्रैकेट में डाल देना प्रॉपर तरीके से, ताकि ये क्लैरिफाई हो जाए कि 1 मल्टीप्लाई है -2 किसके, -2 इंटीजर के साथ। ठीक है, तो दिस विल बी -2 डिवाइडेड बाय -20, सो दिस इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंट फॉर्म. Then we can write 1/10 multiply and divide by 3 also. So this will be 3 divided by 30. This is also an equivalent form of my given number 0.1. We can also find other equivalent forms as well. So 1/10 we can multiply and divide by 5 as well. So this will be 5 divided by 5 tens are 50. So all these are the equivalent forms of a rational number 0.1. Okay, so this is all about the equivalent forms. Now we will convert the rational numbers into the simplest form. What does that mean? That means here are given some rational numbers, we have to find it in the simplest form. So we had already discussed that in simplest form means हमें इस तरीके से cancel out करना है terms को कि हमारे पास जो common factor है ना, वो सिर्फ 1 बचना चाहिए. ठीक है, तो अब देखो हम लोग कैसे इसको simplify कर सकते हैं. तो हमारे पास क्या है, 10/40. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 10 1s are 10, 10 4s are 40. सो दिस विल बी 1/4. अब देखो 1 का जो फैक्टर है वो 1 into 1 ही लिख सकते हैं, और जो 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 लिख सकते हैं, into 1 भी डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है. तो क्या देखें, 1 is the only common factor between 1 and 4, so that means now it is in the simplest form, we can not further reduce it. ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, अब इसको हम लोग फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते. ठीक, अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, -15 डिवाइडेड बाय -40. सो फर्स्ट वी नो दैट दिस नेगेटिव साइन विल बी कैंसल्ड आउट. अब देखो 15 and 40. अब देखो हमें पता है कि जो 15 और 40 है वो 5 के टेबल में आता है, दोनों आते हैं 5 के टेबल में. तो 5 3s are 15 and 5 8s are 40. अब देखो अभी हमको चेक करना है क्या ये फर्दर रिड्यूस हो सकता है क्या. 3 को लिख सकते हैं हम लोग 3 into 1, 8 को लिख सकते हैं हम लोग 4 into 2 into 1. सो 1 तो हम लोग साथ में चिपका ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो अब देखो 1 तो हमारे पास कॉमन फैक्टर है ही ना, तो अगर 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं आ रहा, दैट मीन्स नाउ द नंबर्स आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, तो अब हम इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते. Now we have third part, that is -7. अब देखो -7 is basically -7 divided by 1. So we have 1 in the denominator. So अब देखो -7 और 1, we know that कि 1 और 7 दोनों सिर्फ 1 का ही फैक्टर, 1 is the only common factor between 1 and 7. So that means this is already in the simplest form, we don't have to do anything else. Okay, so this rational number is already in the simplest form.
Now let's come to the fourth part. This is 7 divided by 3. अब can we reduce it? We know that we cannot divide 7 by 3. So that means this is already in the simplest form. This is the simplest form. We cannot reduce it further. ठीक है? So this is all about the simplest form. How to reduce any rational number in the simplest form. अब देखो हमने बहुत तरह के रैशनल नंबर्स पढ़े. हमें पता है कि रैशनल नंबर्स बेसिकली रैशनल नंबर्स इंक्लूड एवरीथिंग, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स. ठीक है. अब देखो हमें पता है कि हमारे पास जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, ये सपोज 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है. ठीक है. तो हमें पता है कि हम लोग किन्हीं भी दो इंटीजर्स के बीच में हमें पता है वी हैव सो मेनी रैशनल नंबर्स. ठीक है. वी हैव सो मेनी रैशनल नंबर्स. तो अब देखो किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं या किन्हीं भी दो इंटीजर्स के बीच में अब वो पूछ सकता है कि हमको रैशनल नंबर निकाल के दिखाओ. ठीक है. तो अब वो डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है. कह सकता है कि भाई सिर्फ एक ही रैशनल नंबर निकाल के दिखाओ. हो सकता है वो बोल देगा कि भाई n रैशनल नंबर, मतलब 3, 4, एक से ज्यादा कितने भी, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20 कितने भी. ठीक है. तो दो तरह के यहाँ पे टाइप्स बनते हैं. पहले टाइप का क्वेश्चन होगा कि हमें किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स और वी कैन से 2 इंटीजर्स. सो रैशनल नंबर बोल सकते हैं बेसिकली किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करो. सिर्फ एक ही रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. तो देखो सपोज करो ये मेरे पास एक रैशनल नंबर है a एंड दिस इज माई अनदर रैशनल नंबर b. ठीक है. तो हमको पता है कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स को अगर हम बीच से डिवाइड करें, दिस इज द सेंटर पॉइंट. ठीक है. तो दिस इज ऑलवेज c नंबर विल ऑलवेज लाइज बिटवीन a एंड b एंड दिस ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर. तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग a और b का एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दैट विल बी द पॉइंट c. So can we say that my C point will be A plus B divided by 2. ठीक है. तो इसका मतलब किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? उनका एवरेज लेके. उनका जो एवरेज होगा दैट विल ऑलवेज बी माई वन रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स. ओके. सो अब देखो मुझे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, 1 और 2. पहले इसको हम देखो प्लॉट कर लेते हैं, इसको रियलाइज भी करेंगे कहाँ पे ये लाई करेगा एक्चुअली में. सपोज ये है 0, 1, 2 एंड 3. अब देखो 2 और 3 मेरे पास ये दो नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स. हमें बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में ना हमें एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. तो एक रैशनल नंबर फाइंड करना है. तो रैशनल नंबर जो एक होगा वो इनके बीचों बीच होगा. यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट दिस पॉइंट बी सी. सो लेट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू 2 एंड B पॉइंट इज इक्वल्स टू 3. ठीक है. अब इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स. ओके. सो C नंबर क्या होगा, C नंबर विल बी 2 plus 3 divided by 2, that is 5 divided by 2, that is 2.5. Okay, so that means C is equals to 2.5 is a rational number in between 2 and 3. Okay, similarly second part is find a rational number between 1 by 4 and 1 by 2. अब देखो 1 by 4 क्या होगा, this will be 0.25, 1 by 2 is 0.5. ठीक है. तो obviously 0.25 पहले आएगा, then we will have 0.5. तो अब क्या करना है, मुझे इन दोनों के बीच में ना एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. तो फर्दर हम लोग वही करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, a को सपोज कर लेंगे 1 by 4, b को we will suppose 1 by 2. So c will be 1 by 4 plus 1 by 2 divided by 2. ठीक है. So this will be, अगर हम लोग LCM लेंगे it will be 4. So this is 4 ones are 4, 1 ones are 1. Then we will take 2 twos are 4, 2 ones are 2. अब देखो this fraction 3 by 4 is divided by another number 2. So this number 3 by 4 is divided by 2. Divided by 2 means जब वो multiply करेंगे तो my fraction will be reciprocated. So this will be 1 by 2. So that means the number C is 3 divided by 8. ठीक है. So 3 by 8 is a rational number in between 1 by 4 and 1 by 2. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग
किसी भी रैशनल नंबर, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम लोग एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी विल डू इज वी विल do some question based on this topic, and we will also solve the question based on the type 2, that is how to find n rational numbers between any two rational numbers. ठीक है, so that's all for today's class. Bye bye.